So, very warm welcome to everyone to this 99th episode of the Grounded Voices series. It's the 99th week continuously. There's not been ever a break in these last several weeks, and we've been discussing various issues of public importance, of issues that connect to our rights, of issues that impact all of us in different ways. And today also we have a very important topic that we are discussing, which is that recently the government has put in the public domain a draft of the data protection bill. And in fact, they have invited comments on that bill up till the 17th of December. So, what we'll be discussing today are the highlights of that bill in terms of what does that bill really mean for us, how is it going to impact us, what does it mean for people at large, how is it going to affect the governance framework of data in this country, right from everything to data collection to data maintenance, and of course, most importantly, also the right to access data held by the government. And we have an absolutely fantastic panel with us. We have with us four excellent speakers who've been thinking about these issues and who've been working on these issues for several years, in fact, some of them for several decades also. We have with us Apar Gupta, who's a lawyer, and he is also co-founder of the Internet Freedom Foundation, where they work on issues related to data privacy, data protection, and you might have seen a lot of their advocacy work. Also, we are joined by Mr. Shailesh Gandhi, who's an RTI activist who's been a former commissioner in the Central Information Commission and has, in many ways, actually dealt with that adjudicatory role of deciding and weighing the right to privacy and the right to information in his role as an information commissioner, and has in recent years really been flagging and raising alarm about some of the judgments that the Supreme Court has been giving and the way the Supreme Court has been interpreting the RTI. We are joined by Anjali Bhardwaj, who's associated with Satark Nagrik Sangathan, National Campaign for People's Right to Information. And we will be hearing from her also on how this is going to impact the RTI and what is the larger plan in terms of even campaigning around that, around raising those issues. And we're joined by Vineet from Rajasthan, from the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. And Vineet has been deeply involved with looking at data disclosure, especially granular data, and actually using that with communities towards accountability. So, what is the kind of data that they've been using? What are the modes of dissemination? How granular data is being used, and has also been deeply involved with processes of social audits. So briefly in हिंदी, आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज ये 99वां हफ्ता है हमारा ग्राउंडेड वॉइसेस की श्रृंखला में, और जमीनी आवाजें लगातार पिछले 99 हफ्तों से हर संडे हम लोग मिल रहे हैं कुछ ना कुछ मुद्दा उठा के. अभी शतक अगले संडे भी हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप सब जरूर जुड़िएगा. लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि एक नया कानून पेश होने वाला है देश भर में, जिसका की नाम है डेटा प्रोटेक्शन बिल. डेटा सुरक्षा बिल उसको शायद उसका हिंदी में यही वो नाम रखेंगे. लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि देश भर में जितना भी डिजिटल डेटा है उस सबको लेके एक पूरा नया फ्रेमवर्क आएगा इस बिल के थ्रू, कि डिजिटल डेटा कौन इकट्ठा कर सकता है, कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, उसको कैसे मेंटेन करना होगा, और उसको फिर डिसेमिनेट कैसे किया जाएगा. और इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के आने से हमारे बहुत सारे अधिकारों पे इसका एक कम से कम इंटरैक्शन होगा और एक प्रभाव भी पड़ेगा. और आज हमारी कोशिश यही है और उम्मीद यही है कि हम सब लोग मिलके थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इस बिल के माध्यम से क्या इम्पैक्ट होगा हमारे सूचना के अधिकार पे, हमारे खुद की इस एबिलिटी पे कि हम लोग भी डेटा इकट्ठा करके उसको यूज करें, और सरकार के ऊपर इससे क्या क्या पाबंदियां होंगी, क्या कोई नए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे, उसका क्या नेचर होगा. और ये सारी चीजें
डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका पूरा जो आज की स्थिति में जो पूरा एक डेटा का जो फ्रेमवर्क है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो पूरा इससे बदला जा रहा है और एक तरीके से एक नया प्रक्रिया और एक नई रूपरेखा लेके ये हमारे सामने आएगा। हमारे साथ आज एक बहुत ही जबरदस्त पैनल साथ में जुड़ा हुआ है जिन्होंने सालों से काम करा है इन सब मुद्दों को लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं अपार गुप्ता जो एक वकील हैं और को फाउंडर है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के, जिनका मेन फोकस रहा है राइट टू प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन के मुद्दों को लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं शैलेश गांधी जी जो सूचना के अधिकार की मुहिम से बहुत वर्षों से, दशकों से जुड़े हुए हैं और साथ में वो केंद्रीय सूचना आयोग में एक आयुक्त भी रह चुके हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि भारद्वाज जो कि सतर्क नागरिक संगठन और नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों से जुड़ी हुई हैं और अभी हाल ही में एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी थी एनसीपीआरआई द्वारा जिसमें कि आगे की क्या दिशा है इस बिल को लेके, किस तरीके से कैंपेन करना है, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ के अभियान की जरूरत है, उसकी भी वो बातचीत रखेंगी। और हमारे साथ जुड़े हैं विनीत जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन से एसोसिएटेड हैं और विनीत कई सालों से इन्वॉल्व हैं कि किस प्रकार से जानकारी ज्यादा से ज्यादा ऐसे माध्यमों से और ऐसे तरीके में दी जाए कि लोग उसका इस्तेमाल करें और वो साथ में सोशल ऑडिट की भी प्रक्रिया से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। और आज अपने पूरे पैनल के साथ मिलके हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझने की कि एक तो ये जो नया जो बिल एक प्रस्तावित किया गया है, ये बिल है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझें, इसके अहम मुद्दे क्या है और इसका क्या प्रभाव रहेगा हमारे बाकी के अधिकारों पर, खास करके हमारे सूचना के अधिकार पर। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपार को और अपार से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो 10 से 12 मिनट लेकर अगर हमको ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो इस समय प्रस्तावित है सरकार द्वारा, ये इस समय संसद में पेश नहीं हुआ है, ये अभी सरकार ने इसका एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है और उन्होंने उसके ऊपर जनता से फीडबैक मंगवाया है। तो यदि अपार हमको एक ओवरव्यू दे, इफ यू वॉक अस थ्रू व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल, what are the areas that you think are really not that well drafted, what are the areas that you think need a lot of public campaigning on, and also whether this bill adequately addresses the principles of data protection while also protecting and finding a way to harmonize the right to information. So over to you, Apar. Thank you so much, Amrita, for inviting me here. I'll start sharing my screen और उसमें एक प्रेजेंटेशन होगी जो मैं 10 से 15 मिनट में करके आपको ये बिल थोड़ा समझा पाऊंगा। सबसे पहले जैसे अमृता ने बोला कि इसका कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है अभी ये प्रस्ताव पे और दिसंबर 17 तक चल रहा है। अगर आपको इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट करना है तो आपको कमेंट डालने के लिए माईगव जो एक सरकारी वेबसाइट है उधर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और चैप्टर बाय चैप्टर कमेंट डालने पड़ेंगे और ये ऑनलाइन कमेंट अंग्रेजी में ही डाल सकते हैं आप। अब ये प्रस्ताव भी अंग्रेजी में ही पढ़ सकते हैं और ये जो पूरी पब्लिक कंसल्टेशन करी जा रही है माईगव पे, वो सारी प्रक्रिया में जो सारे सबमिशन भी जाएंगे, पब्लिक कंसल्टेशन रिस्पॉन्सेज जैसे मैं डालूंगा, आप डालेंगे, पर कोई कंपनी भी डालेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री है जो ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है, वो उसके सर्कुलर के हिसाब से वो रिस्पॉन्सेज भी पब्लिक नहीं किए जाएंगे। तो कल की डेट पे अगर कोई आरटीआई डाले, और हमारे साथ ये हो चुका है आईएफएफ में, जब ऐसी प्रक्रियाओं में उन्होंने माइटी ने बोला है कि वो ऐसे पब्लिक कंसल्टेशन रिस्पॉन्सेज पब्लिक नहीं करेगी, तो अगर आरटीआई डालते हैं वो फिर वो रिस्पॉन्सेज नहीं देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एक्सक्लूजनरी है, मतलब साधारण भारतीय इससे जुड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, जांच नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं एक आपके सामने रखना चाहता हूँ बात कि पूरी प्रक्रिया ही है कानून बनाने की सही नहीं है। और ये दूसरी चीज ये क्योंकि सही नहीं है क्योंकि ये जो प्रस्ताव रखा गया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पिछले महीने, उससे पहले करीबन 3-2.5 साल तक एक कमेटी की प्रोसेस चली थी जिसने एक ड्राफ्ट वर्जन दिया था जिसे जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बोलते हैं। ये अगस्त 2017 से चला था, फिर मिनिस्ट्री के पास गया था,
फिर संसद में रखा गया था। संसद में जब रखा गया था, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और इस पे काम किया जा रहा था। मतलब वाला प्रस्ताव जो था पुराना वाला, जिसे डेटा प्रोटेक्शन बिल बोल रहे थे, और उसको ज्यादा अच्छा था। और वो सुप्रीम कोर्ट की जो के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट है, जो फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी ले डाउन करती है, उसे अच्छी तरह थोड़ा कंसिडर कर रहा था। उसमें भी आरटीआई पे थोड़ा हमला था, उसमें भी थोड़ी डाइल्यूशन थी और 8(1)J से थोड़ा टिंकर किया जा रहा था। पर वो प्रस्ताव बहुत तरीके से उसे इम्प्रूव किया जा सकता था, वो ज्यादा डेवलप्ड था। और मैं एक चीज, ये जब मैं वॉक थ्रू दूंगा आपको, मैं बार बार दोहराऊंगा, इसमें केंद्र सरकार ने एक ऐसा ढांचा रखा है जिसके अंदर ज्यादा उन्होंने सोच और प्रिंसिपल्स नहीं डाले हैं। जैसे अगर आप एनएफएसए का कानून देखें, उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल है, उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। पर इस प्रस्ताव के अंदर एक फ्रेज है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो 18 टाइम मेंशन्ड है, और उसके अंदर केंद्र सरकार इसमें रूल्स बनाएगी बाद में, और केंद्र सरकार तय करेगी कि कानून कैसे लगेगा, किस पे लगेगा, और हर चीज जो राइट इसमें क्रिएट किया गया है उसमें एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है उसे बोलते हैं नोटिस एंड कंसेंट। मतलब आपको किसी से अगर उनका पर्सनल डेटा लेना है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम आपसे आपका पर्सनल डेटा लेंगे, जो आपको आइडेंटिफाई करेगा। और उनको जब उनसे ये लिया जा रहा है, आपको उनको ये बताना पड़ेगा एक नोटिस के माध्यम से। आपको बताना पड़ेगा आप कौन है, आप कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और आपको उसका कैसा इस्तेमाल करेंगे, आप किसके साथ वो शेयर भी करेंगे थर्ड पार्टीज के साथ। तो ये डेटा प्रोटेक्शन का एक प्रिंसिपल है। जैसे अस्पतालों में भी लगना चाहिए ना, जैसे डॉक्टर पूछता है आपसे आपसे कोई, इट्स कॉल्ड नोटिस एंड कंसेंट। तो ये है इसके अंदर। पर इसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो बहुत वाइड हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट हैं, और ये सरकार के ऊपर तो सही तरीके से लगती भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक और प्रोविजन है जिसे बोलते हैं डीम्ड कंसेंट। मतलब कि जब किसी को नोटिस और कंसेंट देने की जरूरत भी नहीं है कुछ कुछ कैटेगरीज में। नाउ जब कोई भी डेटा इकट्ठा करेगा तो उसे डेटा फिड्यूशरी इस कानून में बताया जाएगा, और जो भी जिससे डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसे डेटा प्रिंसिपल बोला जा रहा है। तो आपसे अगर डेटा लिया जा रहा है तो आप डेटा प्रिंसिपल हैं, और जो आपसे डेटा ले रहा है वो डेटा फिड्यूशरी है। तो डेटा फिड्यूशरी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगी हैं क्लॉज 9 में, और आप ये पढ़ सकते हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन अमृता अंजलि को पहले ही भेज चुका हूं, मैं आगे और पढ़ूंगा। इसके अंदर कुछ ऐसी डेटा फिड्यूशरीज होंगी जैसे गूगल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या सरकारी संस्थाएं हैं जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी होती हैं। मतलब वो ऐसा डेटा रखती हैं जो आपके बारे में बहुत ज्यादा इंटीमेट होता है। आपकी डिटेल्स जो होती हैं, वो जैसे सर्च हिस्ट्री अगर आपकी पूरी हो, वो सर्च हिस्ट्री तो विल बी अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ योर, और या आपकी मेडिकल हिस्ट्री, ऐसी चीजें जिससे आपको ज्यादा आपत्ति हो सकती है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा बहुत सारा, जैसे आपका आधार है जो बहुत सारी चीजों के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर और भी चीजें करनी पड़ेगी डेटा फिड्यूशरी को, उनको सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कहलाया जाएगा। और उनको बेसिकली ये मेरी तो यही रीडिंग है कि उन्हें ज्यादातर ये करना होगा कि वो डेटा लीक नहीं। और जैसे बच्चों की डेटा गैदर करेंगे, मतलब 18 आयु, जिनकी आयु 18 से कम है उनके लिए भी थोड़े और ऑब्लिगेशंस हैं, आप इधर पढ़ सकते हैं। पर इससे यूनियन गवर्नमेंट पूरी एग्जाम। इसके अंदर दो और चीजें हैं, आपको राइट्स दिए जाते हैं। तो डेटा प्रिंसिपल आप हैं, डीपी आप हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो डेटा जिस डेटा फिड्यूशरी के साथ है वो कौन सा डेटा है, वो सही डेटा है या नहीं, क्योंकि बहुत बारी हमारा डेटा गलत तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उससे दिक्कतें होती हैं, तो आप सही करवा सकते हैं। और आप ग्रीवेंस रिड्रेसल भी, मतलब ये राइट्स एक्ट करने के लिए आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, मतलब आप नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब
आप किसी का निधन हो जाए तो वो अपनी विल में अपने सक्सेसर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं कि उनके डिजिटल अकाउंट, डिजिटल डिवाइसेस, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स कैसे चलाएं। बट बहुत सारे राइट्स इनके अंदर जो दिए गए हैं उनपे एक्सेप्शंस भी हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा। इसमें एक चीज हमने और देखी है, इसमें ड्यूटीज डाली गई हैं आप सब लोगों के ऊपर, डेटा प्रिंसिपल जो है, और इससे मेरे को लगता है बहुत ज्यादा संकट आ सकता है हम सब पे, क्योंकि इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे हर ऑनलाइन सर्विस से, उससे हमारे ऊपर डेटा बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर रहे हैं और आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप वो ईमेल यूज करते हैं पत्रकारों को अपनी आरटीआई भेजने के लिए, ये थोड़ा जोखिम का काम है ना। तो उसके अंदर आप पूरी डिटेल तो डालेंगे नहीं, आप कुछ कुछ अगर सिग्नल यूज करते हैं, कुछ मैसेजिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, तो सरकार ये कह रही है कि आप अपना पूरा डेटा एक्यूरेटली ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स और डेटा फिड्यूसरीज को देंगे, और अगर आपने गलत तरीके से दिया तो आप पे कानूनी प्रक्रिया चलाई जा सकती है, उस पे आप पे हर ब्रीच के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और ये क्लॉज 16 जो है, ये मैंने किसी और डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में नहीं देखा है भारत के आगे, मतलब ये जो बताया गया। अब आगे बढ़ते हुए, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, हमारा डेटा बाहर जा सकता है। ये बहुत लोग कह रहे थे ये करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में ये जूम कॉल ही नहीं चलेगी अगर डेटा इंडिया का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि भारत में तो डेटा सर्वर ऐसे है ही नहीं जो ऐसे सब सर्विसेज होस्ट कर पाए। पर इसके अंदर भी सरकार ने अपने लिए क्राइटेरिया रखा है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो खुद चुनेगी कौन से देशों में हमारा डेटा जा सकता है, कौन से देशों में नहीं जा सकता। अब क्लॉज 18 इज एग्जेम्पशंस, और इधर थोड़ा संकट और बढ़ जाता है। सरकार पे डेटा प्रोटेक्शन बहुत तरीकों से नहीं लगता विदाउट नोटिफिकेशन, और मेरे को लगता है अंजलि, अमृता और बाकी सब इस पे थोड़ा और डिस्कशन करें बाद में। और इसके अंदर एक और चीज जो मैंने देखी, जो बहुत बहुत मुझे आश्चर्यजनक लगी, वो है कि अगर सरकार आपका कोई भी डेटा इकट्ठा कर रही है ना, तो किसी किसी मतलब के लिए कर रही है ना, उसे कोई आपको कोई सर्विस देनी है, कोई काम करना है, पर वो काम करने के बाद भी उसे वो डिलीट नहीं करना, वो इंडेफिनेटली वो डेटा रख सकती है। तो ये बहुत सारी अजीब अजीब एग्जेम्पशंस हैं, पर ये एग्जेम्पशंस बहुत ज्यादा मतलब सरकार के लिए नहीं है। अब केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी इंडिविजुअल कंपनी, मतलब आप सोच लीजिए किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को भी इस कानून से एग्जेम्प्ट कर सकती है। मतलब जो सारे अधिकार मिल रहे हैं इस कानून के अंदर, वो एक नोटिफिकेशन से कंपनियों पे, निजी कंपनियों पे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो जो सारे आपके राइट्स हैं वो चले जाते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए केंद्र सरकार ये कैसे तय करेगी। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का ज्यादातर काम यही होएगा, जिसमें लोग अपनी ग्रीवेंसेस डालेंगे और वो ये तय करेगी कि वो सही है या नहीं। ये ग्रीवेंसेस होंगी आपके वो राइट्स पे, जैसे राइट टू नो डेटा, राइट टू करेक्ट डेटा, राइट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मैंने पहले दिखाई थी। ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार खुद ही चुनेगी। ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक टेक्नोलीगल ऑफिस होएगा, मतलब इसकी कोई स्थापना भी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ इट हैविंग अ ऑफिस, और कंप्लीटली ऑनलाइन होएगा, मतलब इंग्लिश में करेगा काम, जैसे कंसल्टेशन चल रही है। दूसरी चीज, ईमेल से भेजना पड़ेगा या कोई ऑनलाइन फॉर्म होगा। ज्यादातर लोग इसमें कंप्लेंट डाल नहीं पाएंगे सही तरीके से, अपना अधिकार इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसमें कैसे अपॉइंटमेंट होएगा और कौन इसमें बैठेगा, वो सब तय अपने ऊपर रख दिया है कि वो कैसे तय करेगी। तो अपॉइंटमेंट पावर ही नहीं, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट आल्सो इज कंप्लीटली ओपन अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन, इससे रिव्यू अपील भी डाल सकते हैं आप। पर ये देखिए, ये जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है, पर इसमें इंडिपेंडेंस तो है नहीं। और पेनल्टीज देख लीजिए, नॉन कंप्लायंस जो है, जो मैंने आपको बताई थी, सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट, 10,000 तक जुर्माना हो सकता है आपके ऊपर। और ये जुर्माना एक कंप्लेंट के लिए होएगा, तो अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स डालेंगे आप, तो आप पे और जुर्माना हो सकता है।
और आई थिंक इससे आरटीआई एक्ट में भी जो थोड़ी डिस्कशन होती है कभी कभी कि फॉल्स कंप्लेंट डालने पे जुर्माना नहीं डालना चाहिए, इज समटाइम्स रेलेवेंट हियर, क्योंकि इस कानून से आपका डेटा का कंसेंट ही नहीं लिया जा रहा। इससे जिन लोगों का डेटा लिया गया है उनके पास अधिकार भी है कि वो डेटा अपना मांग पाए। इससे 81J है जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसमें काफी चेंज किया जा रहा है। तो जो टेक्स्ट लाल में कलर्ड है ना, उसे हटाया जा रहा है और एक प्रोवाइजो भी हटाया जा रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट कहलाता है। इस पे मेरे को लगता है शैलेश जी भी कुछ बोलेंगे बाद में। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, केंद्र सरकार की पूरी इसमें चलेगी और शायद नागरिकों की इतनी नहीं चले, हम सबकी नहीं इतनी चले। और इससे मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, पर ये बहुत ऊपर ऊपर की बात मैंने बताई है, ठीक है। इससे मैं यही बोलूंगा कि अगर इस कानून का हम हिंदी में भी ट्रांसलेशन करवा पाए कहीं से और उसको सर्कुलेट करवा पाए, वो अच्छा है। और फाइनली मैं यही बोलूंगा, प्राइवेसी का ये मतलब नहीं होता कि सूचना का कानून को डाइल्यूट करना। प्राइवेसी का मतलब होता है स्टेट अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो नागरिक और सरकार के बीच में जो फासला होता है, जिसमें सरकार के पास ज्यादा बल होता है और नागरिकों के पास कम होता है। तो नागरिकों को सूचना का अधिकार भी चाहिए होता है और प्राइवेसी भी चाहिए होती है, जैसे एक लोकतांत्रिक तरीके से समाज, भारतीय समाज चल पाए। थैंक यू सो मच। राइट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपार। एंड क्योंकि अपार की प्रेजेंटेशन एक्चुअली इंग्लिश में थी और वो हिंदी में बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ट्रांसलेशन की जरूरत है। आई थिंक ये जो अपार ने जो बात रखी, ये भी कि ये आज की डेट में हिंदी में कहीं कंसल्टेशन ही नहीं हो रही है, एंड परहैप्स दिस इज वन ऑफ द फ्यू मीटिंग्स वेयर एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन बिल है क्या उसको हिंदी में समझाया जा रहा है। दिस इज एक्चुअली सम ऑफ द वर्क दैट द गवर्नमेंट रियली इज मैंडेटेड टू डू, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। And I think from an overall reading of what you said, it really looks like it's become more of how the government wants to protect itself when dealing with data, while at the same time trying to regulate and control citizens from either giving false information right down to frivolous complaints. एंड आई थिंक जब आप बोल रहे थे तो मेरे को वही याद आ रहा था कि कितनी बार हम लोग ये लड़ाई लड़ चुके हैं कि ये फ्रिवलस वाले शब्द आप नहीं रख सकते और आप ना इंट्रोड्यूस कर सकते, बिकॉज वंस यू गो डाउन दैट पाथवे and if it becomes acceptable for complaints related to data protection, there's nothing that stops them from saying that okay, we'll now also start using it for other things. So I think thank you very much for that overall presentation. And like Apar said, उन्होंने already presentation हम में से कई लोगों को भेजी हुई है, तो यदि आप presentation की एक कॉपी भी चाहेंगे तो we'd be very happy to share that with you. I think you also briefly reflected on all the obligations that we create on people who collect and use data, and I think that's again civil society needs to start thinking about that in a very detailed way. हम सब लोग ये काम करते हैं, हमने कोविड के दौरान तो ये बहुत ही ज्यादा काम किया ये वाला कि किन किन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इंक्लूडिंग जब फूड रिलीफ में सब लोगों ने काम करा, तो डेटा इकट्ठा करना, चेक करना, social audits करना. So how is that going to impact one set of regime that we are used to? And I think Apar said it very well जब अपार ने एंड में बोला कि राइट टू प्रिवेसी डज नॉट मीन स्टॉपिंग अ सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एक्चुअली राइट टू प्रिवेसी भी आपको सिटीजन की ही प्रोटेक्ट करनी है. दीज आर बोथ फंडामेंटल फॉर डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन एंड फॉर द राइट्स एंड लाइफ ऑफ अ सिटीजन, येट द गवर्नमेंट कीप्स ट्राइंग टू प्ले one against the other. So thank you very much for that, Apar, and I hope you will be with us for another half an hour, 40 minutes. So please अपने questions आप लोग chat box में भी डाल दें, and Apar, feel free to use the chat box in case some queries come up there. अब मैं बुलाना चाहूंगी शैलेश जी को. So Shailesh, if you talk to us specifically about how do you view the specific amendment that this
proposed bill is making to the RTI law itself, uska kya impact hoga on the RTI, and if you want to flag other provisions also of this bill which you think may have some kind of bearing on the RTI Act, and if I could request you to be bilingual, then that would be really nice. Otherwise, I'm very happy to give a summary translation after you finish speaking. कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल होने की। जी जी। एक सिंपल तरीका आपको बताऊं कि ये जो बिल प्रस्तावित है और आरटीआई का 8(1)J अमेंड करने की बात है, ये अगर कानून होता 1990-92 में तो एमकेएसएस की स्ट्रगल ही नहीं शुरू हो सकती। एमकेएसएस ने जो मास्टर कार्ड मांगे वो मना कर दिए जाते, ये कानून अगर होता तो। जो प्रस्तावित है, क्या प्रस्तावित है? सूचना के अधिकार का 8(1)J का आज भी कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 35% के ऊपर नकारते हैं, मेरे हिसाब से गलत तरह से। जो आज कानून है उसमें 3 प्रावधान है। पर्सनल इंफॉर्मेशन होने के बाद, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन होने के बाद वो प्राइवेसी को इंपैक्ट करता है कि नहीं, पब्लिक रिकॉर्ड्स का है कि नहीं, एंड ये सब को छोड़ के एक खास परंतुक है कि अगर वो सूचना पार्लियामेंट या असेंबली को दी जाएगी तो आदमी को नहीं मना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा परंतुक है। ये पूरा खत्म होने की बात है। अब ये कहने उनका सजेशन है कि व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? अंग्रेजी भाषा में तो नॉर्मली पर्सन मतलब आदमी, इंसान होता है। इन्होंने पर्सनल का डेफिनेशन दिया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिसमें कहा है कि आदमी पर्सन है, कंपनी पर्सन है, मृत व्यक्ति पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, और स्टेट सरकार भी पर्सन है। तो उसकी सूचना नहीं दी जाएगी, ये उनका सुझाव है। अगर किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन आप कहेंगे गवर्नमेंट का ये ऑर्डर क्या निकला मुझे दीजिए, तो सरकार पर्सन है तो उसकी इंफॉर्मेशन पर्सनल हुई तो मना कर सकता है पीआईओ, और कोई कमिश्नर की ताकत नहीं है कि कुछ उसको कहे। मास्टर कार्ड, राशन कितना मिला, पासपोर्ट एप्लीकेशन क्या, फेक छुट्टियां ली, फेक इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे, ये कुछ भी आपको हकीकत में पीआईओ को छूट दी जाएगी कि वो हर सूचना बना कर सके, हर सूचना चाहे तो। आज भी कुछ हद तक गैर कानूनी तौर से कमिश्नर्स और पीआईओस बना करते हैं, कोर्ट्स भी बना करती है मेरे हिसाब से, कानून को सोचे बिना। उसको लीगलाइज करने का ये मूव है। आज कुछ अच्छे कमिश्नर्स और अच्छे पीआईओस पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं अनलेस वो बाकी क्राइटेरिया मीट ना करे तो। मगर और प्राइवेसी की बात जो अपर ने कही, पुट्टस्वामी जजमेंट, मुझे बड़ा खेद हुआ। पुट्टस्वामी जजमेंट मैंने भी पढ़ा है, करीब 500-550 पेजेस का है। वो बड़ी फिलसूफी दी गई है, बहुत फिलसूफी है। मगर अगर मैं पीआईओ हूं और सोचूं कि प्राइवेसी किसको कहूं, तो ये जजमेंट में नहीं मिलता है। पुट्टस्वामी जजमेंट में मुझे स्पेसिफिक मिले कि इसको प्राइवेसी का कहा जाए, इसको प्राइवेसी कहा जाए, ये कहीं जिक्र नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टस्वामी में ये कहता है कि डेवलप ऑन अ केस टू केस बेसिस। मतलब हर पीआईओ ये प्राइवेसी का वायलेशन है या नहीं वो समझने के लिए he must go to the Supreme Court and get a decision। ये बहुत ही भद्दा हम कुछ कर रहे हैं। जहां तक डेटा प्रोटेक्शन की बात है, मेरे हिसाब से ये कुछ कानून ऐसे हैं, सूचना का अधिकार कानून मेरे हिसाब से 1950 में बनना चाहिए था जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो बहुत जरूरी था लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में मेरे हिसाब से हर इंसान, हर नागरिक देश का मालिक है। रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हिच इज क्लासिक। बट अब उसको चेंज करके ये बनाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग रूलर्स। मेरे मालिक इलेक्ट करने की सिस्टम बना दी गई है।
वो लोकशाही नहीं है। और अगर ये लोकशाही है तो सब सूचना जो सरकार के पास है वो मेरी है, आपकी है, हर इंसान की है, हर नागरिक की है। उसमें से कुछ अपवाद नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज वो देने से कुछ लोगों को हानि पहुंचेगी जिसको बचाने की जरूरत है। मगर ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन बोर्ड के जो अमेंडमेंट की बात है, वो तो सूचना के अधिकार को खत्म कर देगा। एंड पीआईओ, अगर मैं भी कमिश्नर रहता, पीआईओ अगर मुझे कहता है जनमाहिती अधिकारी की भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो मैं भी उसको कोई दोष नहीं दे सकता। हकीकत में अगर कानून को स्ट्रिक्टली पढ़ो तो आप अगर कहेंगे कि मेरी आंसर शीट की कॉपी दो, तो मना कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल है। पर्सनल उस पर्सन को भी दी जाएगी या नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कानून जिस हिसाब से वो फ्रेम करने की बात है। दूसरा एक ये 32 में है और इसका विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे सूचना के अधिकार के कानून को मत हाथ लगाइए। बहुत मेहनत के बाद राजस्थान के गांवों से ये आवाज उठी और पूरे देश में ये आवाज चली और बहुत साल ये स्ट्रगल चली। टू गेट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इट शुड हैव कम इन 1950 itself, वो नहीं हुआ। और ये डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है, मेरे हिसाब से 100 साल के बाद आना चाहिए था। उस टाइम शायद लोकशाही इतनी सुदृढ़ बने दैट people need to protect their data. Today, over 95% of the people don't care for this. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हकीकत में गूगल, फेसबुक वगैरह, जूम भी बहुत सारा डेटा अपना इकट्ठा कर चुके हैं। उन्हें ज्यादा मालूम है मेरे बारे में मेरी बीवी से। तो ये डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे ढकोसला है, सरकार को और पावर मिल रहे हैं। बट 29(2) कहता है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ओवर रूल करेगा सब कानूनों को। मेरे हिसाब से उसमें अपवाद आरटीआई को रखना चाहिए, क्योंकि आरटीआई जो है वो देश के मालिकों का अधिकार है, लोकतंत्र की तरफ, सही लोकतंत्र की तरफ जाने का अधिकार है। आज जो हमारे लोकतंत्र हम कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, टुडे इट इज अ इलेक्टिव डिफेक्टिव डेमोक्रेसी। दिस इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। बट सूचना का अधिकार वो साधन है जिससे हम पहुंच सकते हैं वहां पे, मगर उसको खत्म करने की बात है। कृपा इंटरनेट पे जाके अगर आप कर सकते हैं तो विरोध प्रकट कीजिए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कीजिए, मीडिया को भी इसमें भाग लेना चाहिए। और एक खबर आपके साथ शेयर करूं, 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, मैं और दूसरे 4 कमिश्नर्स मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं 6 से 7 बजे तक, जिसका सूचना भी आपको मिलेगी। पार्टिसिपेट कीजिए, मीडिया को बताइए कि वो रिपोर्ट करे। अगर जन आवाज उठी तो ये सरकार भी सूचना के अधिकार को छोड़ देगी। हमारा बहुत अच्छा कानून है, उसको रहने दीजिए, हमारे अधिकारों पे वार कीजिए। धन्यवाद। राइट, थैंक यू शैलेश। आपने बहुत ही, मुझे लगता है कि एक कम समय में और शार्पली आपने इसका एक बहुत क्रिटिक करा, रियली हाईलाइटिंग दैट what are the various ways in which it's going to impact our right to information. I'm just going to briefly, in 3-4 minutes, just summarize it in English for friends who might not be able to understand Hindi. I'm sorry, I couldn't do it by English. No, that's okay. I will do it. I'll do a quick summary. So essentially, Shailesh ji said that if this kind of a law had been there before the RTI Act had come in, we may have probably never ever seen the kind of vibrant struggle that we saw for the RTI, which actually started with seeking access to government records related to muster rolls in different places related to rations. And that really inspired the whole movement for seeking a legal framework for accessing information. He said the right to information flowing from the Constitution, Article 19(1)(a). So ideally, we should have had the right to information law coming from the 1950s itself. But however, now that it has been there in practice since 2005, it's really been key to seeking accountability, to seeking information from the government. And he said that in practice, what really happens is that the exemption on privacy, which is Section 8(1)(j) of the RTI Act, is actually the most often used exemption to deny information.
So he said it's become quite sort of routine for PIOs to simply hide behind that exemption of Section 81J, and it's already the most oft used exemption. And he said that once the data protection law comes in and it further amends this 81J to in fact take away some of the safeguards, it's really going to be very, very difficult to access information under the RTI Act, which in any way relates to personal information. Shailesh said that some of the overrides and the safeguards to minimize 81J, which are there in the law, are also being done away with. For example, the proviso which says that no information which cannot be denied to Parliament or state legislature shall be denied to any citizen is actually being done away from the data, using the data protection law from the RTI Act, and this is going to have a huge impact. He said that we all really need to campaign very, very strongly to try and protect the RTI law, prevent these particular amendments. And he said that at least in the given scenario where governance is in the state in which it is in, access to personal data is key to ensure government accountability. He said that perhaps many decades from now, when things might have improved, governance might be a lot better, one could still think of something like a data protection bill, but he said certainly at this time, to his mind, it's probably not the right thing. And he's urged all of us, those of us who can actually access the internet and are in a position to send our comments, that we must actually try and send our comments and try and do as many public meetings, public campaigning on the issue, try and raise it in different ways in the media, because to his mind, this could really be the death knell for the RTI in many ways. And therefore, there's a very strong need for everyone to take up these issues. So thank you very much for that intervention, Shailesh, and for really flagging it in the strong way in which you've done. I think that's much needed. And really today's Grounded Voices is also in a sense to try and reach out to constitute members of NAPM all over the country and friends who joined in here and on Facebook to really try and flag this concern and have them all part of this larger campaign. अब मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि जी को, and Anjali, from you we'd request you to sort of take an overview of, guide us through an overview of how do you think that this is going to impact specifically our RTI Act, which is something that Shailesh ji has also reflected on, but also more widely, how is it going to impact our right to information, also related to various other social welfare programs, social welfare schemes. We know that in a lot of other laws, there are certain provisions regarding transparency, regarding social audit. What happens to all of those? And also perhaps if you would like to shed some light on some of the campaigns, some of the ideas in the near future that are likely to be taken up and launched, and how people can join all of these. So over to you, Anjali. Thank you, Amrita. And हमेशा की तरह NAPM को बहुत-बहुत मुबारक, क्योंकि ये इतने लंबे समय से ग्राउंडेड वॉइसेस की सीरीज चल रही है और हर बार हम लोग कोई ना कोई जरूरी मुद्दा उठाते हैं। मीरा, अरुंधति, सभी साथियों को NAPM में बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, जो आज हम मुद्दा बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि दैट गोज टू द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम अगर कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, तब हमें इन मुद्दों के बारे में चर्चा भी करनी पड़ेगी और जैसा शैलेश ने कहा, कैंपेन भी करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि सूचना का अधिकार किसी सरकार ने अपने खुशी से हमें नहीं दिया है। लंबी लड़ाई लड़ी गई, खूब मुहिम रहा, ड्राफ्ट्स बहुत सारे बने, उसके बाद ये कानून आया है। और आज जिस तरीके का प्रहार सरकार कर रही है, लगातार कर रही है सूचना के अधिकार पर, हमारे सूचना के अधिकार पर, और मैं कानून की ही बात नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि ओवरऑल अगर हम देखें, सूचना के अधिकार पर आज प्रहार है। पहला प्रहार तो ये है कि सरकार कह रही है हम डेटा ही नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप सेंसस देख लीजिए, आप तमाम और तरीके का डेटा देख लीजिए, माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा देख लीजिए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन के बिना, उसका डेटा देख लीजिए। सरकार कहती है डेटा ही नहीं है, सूचना कैसे देंगे आपको।
बाकी चीजों में सरकार ने इस तरीके से कानून को मोड़ने तरोड़ने की कोशिश कर रखी है इंफॉर्मेशन कमीशंस को, कि जो सूचना सरकार देना चाहे वो ले लीजिए, उसके अलावा सरकार सूचना नहीं देना चाहती है। और फाइनली कोर्ट से भी सूचना के अधिकार को बहुत धक्के लगे हैं, और इसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी और चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये कानून, जो सूचना का अधिकार कानून है, इसने हमारे देश में हर इंसान को, नागरिक को सशक्त किया है। सशक्त किया है सरकार से सवाल करने के लिए और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी दोनों इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन दोनों की जरूरत है लोगों के सशक्तिकरण के लिए एक लोकतंत्र में। लेकिन क्या राइट टू प्रिवेसी लेने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करना चाहिए, या वाइस वर्सा? ये मुझे लगता है कि हम में से कोई नहीं मानता। बोथ दीज राइट्स हैव टू कोएग्जिस्ट, और ये कोई नई बात नहीं है। जब सूचना का अधिकार कानून बना, उसी में ये एक बहुत मूल चर्चा हुई थी। मुझे याद है जब ड्राफ्टिंग भी चल रही थी कानून की, उस समय पर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ काम करते थे, और उन्होंने कहा कि देखिए, सूचना का अधिकार तो जरूरी है, पर जिस तरीके का प्रहार हम पे होता है, जिस तरीके का स्टिग्मेटाइजेशन हमारा होता है, तो अगर सारी सूचना हेल्थ के बारे में, इन सब चीजों के बारे में लोग लेने लगेंगे, तो किस तरीके की हम पर प्रॉब्लम्स आएंगी, यह सोचना जरूरी है। और 81J जिस जिक्र शैलेश ने करा और अपार ने भी करा, वो हम सूचना के अधिकार कानून में स्पष्ट रूप से लाया गया है, क्योंकि कानून में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ चीजों के ऊपर हम सरकार से सूचना नहीं ले सकते, और उसमें से एक ऐसी चीज है निजी सूचना, लेकिन सारी निजी सूचना नहीं। सेक्शन 81J ने बहुत केयरफुली क्राफ्टेड सेक्शन था। उसमें आपको कम से कम 3 तरीके की चीजें प्रूव करनी है। एक, कि जो सूचना, चाहे वो निजी सूचना हो, वो या तो ऐसा हो कि उसका किसी पब्लिक एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, या ऐसा हो जिसको लेने में कोई पब्लिक इंटरेस्ट है ही नहीं, या ऐसा हो कि अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी हो, मतलब अनवारंटेड निजता के ऊपर उसका प्रहार हो, जब तक कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। ये 81J में लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि 2 चीजें हमें आज की तारीख में याद रखनी है, कि सूचना का अधिकार कानून जब बना, उसमें प्रिवेसी को, राइट टू प्रिवेसी को भूला नहीं गया। राइट टू प्रिवेसी इंश्योर करने के लिए 81J डाला गया, लेकिन ये जरूर हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये ब्लैंकेट प्रोविजन है कि कोई भी निजी सूचना है, मेरा नाम है, मेरा पता है, मेरा कोई भी निजी सूचना, उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान नहीं बनाया गया। आज जो हम देख रहे हैं, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, इसमें मैं मानती हूं कि सरकार की जो मंशा है वो साफ झलक रही है। सरकार जब राइट टू प्रिवेसी की बात करती है, पुट्टासामी जजमेंट की बात हुई, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खड़े होकर कहा राइट टू प्रिवेसी नहीं है लोगों की, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। लेकिन जब सरकार चाहती है, वो हमसे आधार का सारा डेटा लेती है, तब राइट टू प्रिवेसी नहीं है। पर जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं बताने, जब हमें सूचना नहीं देनी, तो सरकार कहती है ये तो निजता का मामला है, ये तो प्रिवेसी का मामला है। तो सरकार दोनों तरफ से खेल रही है, अपने हाथ में अपने आप को दोनों तरह से सशक्त कर रही है, और हमारी राइट टू प्रिवेसी के नाम पर हमारे ही अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल है, इसका जीता जागता उदाहरण है।
देखिए, अगर हम इस कानून के अंदर जो बिल ढांचा आया है उसमें अगर हम देखें, ये सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा। ये बिल ये नहीं कह रहा कि अगर कोई ऐसी सूचना हुई जिससे, निजी सूचना हुई जिससे किसी का कुछ बिगड़े, कुछ हार्म हो। ये कह रहा है सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे से। क्योंकि जैसा कि अपार ने हमें दिखाया स्लाइड में, शैलेश ने बात की, पूरी धारा 81J को डिलीट कर दिया गया है। केवल छोड़ा गया है कि सरकार को सूचना नहीं देनी अगर वो सूचना निजी सूचना से संबंधित है। Information that relates to personal information will be exempt। तो मतलब साफ है कि सरकार कह रही है कि हम कोई भी निजी सूचना नहीं चाहते कि कहीं और पर जाए, जब तक कि, जैसा बात हुई है कि पब्लिक इंटरेस्ट को आप 82 में प्रूव ना कर दें और 20 साल पुरानी जो सूचना है वो ना हो। तो इसके अलावा अब मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर बात जोड़ते हुए प्रीवियस स्पीकर से कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, और ये बिल्कुल सही है कि 17 साल हो गए कानून को, बट इट इज एन इवॉल्विंग रेजीम। इवॉल्व कर रहा है ये कानून का यूज और अंडरस्टैंडिंग भी। इसके अंदर अनवारंटेड इन्वेजन क्या है इसकी डेफिनेशन नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इसकी डेफिनेशन नहीं है। पब्लिक एक्टिविटी किसको एग्जैक्टली समझा जाए सीपीआईओ द्वारा, उसकी डेफिनेशन नहीं है। तो ये सारी डेफिनेशंस, प्रिवेसी क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं है। इन सब डेफिनेशंस की इवॉल्व करने की जरूरत थी, पर सरकार ने हथौड़ा लेकर सारी चीजें हटा दी डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर और कहा कि अब तो इन सब चीजों को आप भूल ही जाइए। और डेटा प्रोटेक्शन बिल में पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन कर दिया है। अब आप ये समझिए कि अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल में पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन हो जाता है तो आज जो 8(2) के तहत हम जाकर आर्ग्यू कर सकते हैं, तो इट विल बिकम अ मैटर ऑफ कॉन्टेस्टेशन एंड ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट डिफाइंड एज अ टर्म अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वो डिफाइन आज कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन बिल में। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है हमारे सूचना के अधिकार कानून को संकुचित करने की, वो स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा दिखाता है। मैं तो कहती हूं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल बहाना है, आरटीआई को हटाना है। ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अगर चाहती कि सही में लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो, ऐसा डेटा प्रोटेक्ट हो जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, सर्वेलेंस को रोक सके, वो बिल इस तरीके का नहीं होता। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है कि आप अगर समझें कि हम लोग जब बात करते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार को हटाने की, भ्रष्टाचार हम जानते हैं हमारे देश में बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। अब क्या है कि अगर मुझे राशन चाहिए, जब तक मेरे पास सारी सूचना नहीं है कि किसको राशन कार्ड मिला है, कितना राशन किसके नाम का आया है, मेरी कम्युनिटी में अगर मेरे को देखना है कि सबको राशन मिल रहा है कि नहीं, जब तक रिकॉर्ड सारे सामने ना हो तब तक भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता, नहीं रुक सकता। लेकिन आज अगर आप देखिए तो निजता के नाम पर, प्राइवेसी के नाम पर जगह जगह पर लिस्टों को हटाया जा रहा है। बेनिफिशियरीज की लिस्ट को, पेंशनधारियों की लिस्ट को, राशन कार्ड होल्डर्स की लिस्ट को हटा दिया जाता है, ये कहकर कि प्राइवेसी के नाम पर हटा दिया जाता है। कोविड के दिनों में, मतलब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन लगा था, लोगों ने दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ये हुआ है, लोगों ने इतनी समस्या का सामना किया क्योंकि प्राइवेसी के नाम पर राशन कार्ड
के जो शॉप्स हैं, उन शॉपकीपर्स के फोन नंबर्स को हटा दिया गया फ्रॉम द वेबसाइट। और इसके कारण लोग फोन करके पूछ नहीं पा रहे थे कि दुकान खुली है कि नहीं, राशन आया है कि नहीं। कितने तरह की समस्याएं उन्हें सहनी पड़ रही थी, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये तो निजता है, इसलिए हम फोन नंबर हटा देंगे। ये किस तरीके की, मतलब ये किस तरीके का लोकतंत्र है? किसके लिए सरकार काम कर रही है? किसके लिए ये तंत्र चलाया जा रहा है? ये सवाल उठता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम सब जानते हैं, किसी को घूसखोरी करते हुए आप कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ सकते। कैचिंग somebody रेड हैंडेड इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। कैसे पकड़ेंगे आप किसी भ्रष्ट इंसान को? तभी पकड़ पाएंगे जब आपको उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज पता है, जब आप ये जानते हैं कि इन जनाब की तो तनख्वाह जो है महीने की 1 लाख रुपए है, लेकिन इन्होंने इनकी जो एसेट्स और एसेट्स हैं, दे आर डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। कि ये एसेट बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं 50 लाख रुपए की, घर खरीद रहे हैं 5 करोड़ रुपए का, तब कोई सवाल कर सकता है कि भाई आपकी तो तनख्वाह 1 लाख रुपए की है, आप कहां से इतने करोड़ों की गाड़ियां और बंगले बना रहे हैं? तो भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए आप कैसे कुछ भी करेंगे जब तक सूचना आपके पास नहीं होगी? अब निजता के नाम पर इस तरीके की सूचना को बाहर करना कहां तक सही है? यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि इम्प्लीमेंटेशन जो सूचना के अधिकार कानून की थी, हम ये सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करने वाले लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आज तक हमें सारी सूचनाएं दी जाती थी। धारा 81J का इस्तेमाल करके अभी तक भी PIOs अपनी मनमानी चलाते थे। सरकारें और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस तरीके के जजमेंट्स दे रहे थे जो कि बिल्कुल हम मानते हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे हमारे अधिकार को एकदम नाजायज तरीके से। उस लड़ाई को समझ के उस प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय आज जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये सूचना के अधिकार कानून में संशोधन ऐसे ला रहा है कि अब हम भूल जाएं कि अब हम सरकार से ये कह सकते हैं कि पेंशन जिन लोगों की आती है उनकी आप जरा लिस्ट बताइए, चेक तो कर सके कि ठीक पर्सन को पेंशन मिल रही है, जिसका नाम है उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारी की सारी सूचनाएं अगर ये कानून में संशोधन आ गया तो हमारे हाथ से जो बची कुची भी थी वो निकल जाएंगी। अभी मेरे बाद बात करेंगे राजस्थान से हमारे दोस्त MKSS से, जो कि हमें बताएंगे जन सूचना पोर्टल के बारे में। सेक्शन 4 धारा 4 जो है इस कानून की, उसमें हम कितनी सारी चीजें, विनीत हैं हमारे साथ जुड़े हुए, कितनी चीजें हैं जो हम कहते हैं कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और बहुत जगह पर खूब जम के लोगों ने डिमांड किया तो वो चीजें मिल भी रही हैं। अब वो सारे स्ट्रक्चर्स पर आज गाज गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिल है अगर ये चला जाता है इस करंट फॉर्म में और सूचना के अधिकार का संशोधन होता है तो कोई सरकारी अधिकारी ये जुर्रत नहीं करेगा कि ऐसी सी सूचनाएं बाहर निकाल दें। आप जानते हैं कि इस बिल में जो पेनल्टी है 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। आप ये बताइए कि कौन सा PIO है आज जो बैठ के कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो सूचना दे देते हैं। ये डर जो बना रहेगा वो तो लोगों को बिल्कुल जो चाहते भी थे सूचना देना, उनको भी सूचना देने से रोक देगा। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो कानून जो ढांचा लाया गया है ये हमें किस तरीके से हमें सशक्त करने की बजाय सरकार को सशक्त करेगा। देखिए इस बिल को अगर आप पढ़ें, जो अगर हम समझे अपार ने हमें क्या बताया, इस बिल में सरकार ने सारी ताकत अपने पास रखी है। हर चीज पे सरकार कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। सब चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय करनी है तो फिर तो आप सीधा ही जो करना है कर दीजिए।
मतलब सबसे पहला जो चीज हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कमीशंस के बारे में भी, कि भाई उन्हें ना ऑटोनोमस होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए, उनके दबाव में काम नहीं करना चाहिए, केज्ड पैरट नहीं बनना चाहिए, ना सीबीआई को, ना सीआईसी को, ना एसआईसी को। ये तो बिल ऐसा है जिसमें कि उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनाया है, उन्होंने कोई प्रिटेंस ही नहीं रखा। वो कह रहे हैं भाई ये तो हमारे पिट्ठू होंगे ही। यहां तक कि मेटी को बनाने की जरूरत ही नहीं है बोर्ड। मैं तो कहती हूँ कि मेटी के सेक्रेटरी ही बन जाए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के चीफ, क्या जरूरत है किसी और को लगाने की। वो कह रहे हैं हम ही तय करेंगे कौन बनेंगे, हम ही तय करेंगे वो काम कैसे करेंगे, हम ही सारा कुछ तय कर देंगे। तो भाई बोर्ड क्यों बना रहे हैं आप तो कह दीजिए मेटी के पास ही आ जाइए, आप खत्म करिए, क्यों हमारे लोगों का और पैसा आप सैलरीज देने में बर्बाद करना चाहते हैं। तो आज की जो हमारे जो चर्चा है, इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो बिल है, ये एक पूरी तरह से नई वेपनाइज्ड एजेंसी बनाने की तैयारी है। हम देख रहे हैं कैसे सीबीआई को, कैसे ईडी को, कैसे एनसीपीसीआर को, तमाम एजेंसीज को आज सरकारें लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूज कर रही हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक ऐसी ही तैयारी में बनाया जा रहा है। आप और मैं जब सूचना लेंगे, कहीं पे सर्वे करेंगे, कहीं पे रिसर्च करेंगे, आरटीआई के तहत सूचना लेंगे, हम सब डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। मतलब हम लोगों को सारे तमाम चीजों के पालन करना पड़ेगा, और अगर वो हमने सही से नहीं किया तो हम पे 500 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। अब ये जो कौन तय करेगा? ये सरकारी बोर्ड तय करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई रिलायंस या कोई कॉर्पोरेट हाउस सरकार को पैसे देते हैं, वो तो कुछ मर्जी करें, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप और हम अगर सरकार की गलत नीतियों पे आवाज उठाते हैं तो हमें चुप कराने का ये एक और साधन बन जाएगा कि भाई आप 500 करोड़ रुपए दे दीजिए। ये जो पूरी तैयारी है, हमें समझना है कि हम अगर इसका आज अपोज नहीं करते, ये एक पूरा फ्रैंकनस्टाइन ढांचा बन सकता है हमारे जो अधिकार है सूचना का उसे खत्म करने के लिए, और हम सब लोगों का सवाल पूछने का लोकतांत्रिक अधिकार खत्म करने के लिए, और सूचना का अधिकार खत्म करने के लिए। मैं बस अपनी बात ये कह के समाप्त करना चाहूंगी कि सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान एनसीपीआरआई की मीटिंग हुई थी, अभी कल मीटिंग हुई थी, उसमें जो निजता पे काम करते हैं साथी वो भी आए थे, और सभी का ये मानना था कि ये बिल बिल्कुल बकवास है, इसको पूरी तरह से हमें इसको नकारना होगा, और इसके लिए अलग अलग तरीके से हमें आवाज उठानी होगी। पहली चीज जो तय हुई है वो ये है कि सरकार इसके ऊपर बातचीत, चर्चा, कंसल्टेशन सही से करे। और अभी सरकार कह रही है कि आप हमें बता दीजिए आपकी क्या तकलीफ है और हम उसको गोपनीय रखेंगे। मतलब मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बाकी लोगों को क्या तकलीफ है, क्या कह रहे हैं लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो गोपनीयता में उन्होंने अभी से काम करने की बात ऐलान कर चुके हैं वो। तो हम ये कह रहे हैं कि, और दूसरी बात, वैसे तो सरकार बड़ी ये हिंदी और वो भाषा और ये सब करती है, इसका बिल केवल अंग्रेजी में डाला है, केवल इंटरनेट पे डाला है। भाई कितने लोग हैं इस देश में जो अंग्रेजी में इंटरनेट पे चीजें जाके पढ़ते हैं? ये कानून तो हम सबके ऊपर लागू होगा, ये कानून तो हम सारे लोगों के अधिकारों का हनन करेगा। तो हम सबको अधिकार होना चाहिए इसको पढ़ने का, समझने का, चाहे कन्नड़ में हो, चाहे मलयालम में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे मराठी में हो, सब जगह पे ये तरीके से और भाषाओं में इसका जो है ट्रांसलेशन होने की जरूरत है। सरकार को समय से प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करनी चाहिए है, बहुत सही तरीके से, और उस कंसल्टेशन को गोपनीय ना रखें। और उस कंसल्टेशन से ये नहीं कि सबकी बातें सुन ली और करा वही जो हम चाहते हैं, सही मायने की कंसल्टेशन करें। तो पहली चीज तो ये है कि एक पब्लिक लेटर
जो है वो इनिशिएट की जाएगी और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको साइन कर सके और इमीडिएटली सरकार को भिजवाई जा सके वो चिट्ठी कि हम चाहते हैं कि आप हफड़ा तफड़ी में इस कानून को कतई ना लाएं, आप इसके ऊपर सही से कंसल्टेशन करें और इसको बदल दें जिस तरीके से भी जरूरी है बदलना। दूसरी चीज, हम कमेंट्स जरूर भेजेंगे। ये सारी चीजें लिखते हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, केवल मैंने तो कुछ ही चीजों को गिनाया क्योंकि समय का भी अभाव है, लेकिन हम कमेंट्स जरूर भेजेंगे। और फाइनली हम जो एक पोजीशन बार बार सभी साथियों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सूचना के अधिकार को किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी संशोधन सूचना के अधिकार में लाया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि सूचना के अधिकार का संशोधन किए बगैर अगर सरकार में मंशा है तो लोगों की निजता की भी सुरक्षा हो सकती है और डेटा प्रोटेक्शन की भी सुरक्षा हो सकती है, सर्वेलेंस भी बंद की जा सकती है। सूचना के अधिकार को अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। तो ये एक मुहिम हम हर बार, जितनी बार सरकारों ने सूचना के अधिकार कानून के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है, उतनी ही बार सभी कैंपेन्स ने मिलकर आवाज उठाई है और इस बार भी हम लोग उस कैंपेन को जरूर आगे ले जाएंगे। और कम से कम देखिए, इतने सालों में बहुत बार अटेम्प्ट्स हुए कि सूचना के अधिकार कानून को बदला जाए। हर बार संशोधन के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, खूब जोर से आवाज उठाई, लेकिन इस सरकार ने, जो अभी मौजूदा सरकार है, 2019 में सारी बात को नजरअंदाज करते हुए, लोगों की बात को नजरअंदाज करते हुए अमेंडमेंट लेकर आए। वो उन अमेंडमेंट्स की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सूचना के अधिकार को सशक्त कर दिया, पर उन्होंने सुना नहीं। लेकिन हम कहना हमारा कर्तव्य भी है और कहेंगे हम, वो हमारा हक भी है। तो हम कैंपेन जरूर चलाएंगे और सरकार को हम जरूर कोशिश करेंगे कि सरकार चाहे ना भी सुनना चाहे, उसे सुनना पड़े। तो इस कैंपेन में भी हमें सभी कैंपेन्स को साथ में जोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार किसी एक कैंपेन का या एक किसी ग्रुप का अधिकार नहीं है, ये हम सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो सरकार मनमानी करेगी, सरकार ये तानाशाही हो जाएगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो हम इस जो बिल है इसका विरोध करेंगे और सभी लोगों के साथ में चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। Right. Thank you, Anjali, for that very strong and really vociferous note of dissent on the proposed data protection bill, and also very detailed look at how the government is actually trying to weaponize this new proposed bill against the right to information, and not just against the right to information, but also various other rights that are actually guaranteed to us. So before we go to Vineet, I'm just going to take 3-4 minutes and translate to English for friends who may not be so comfortable in Hindi. So Anjali started out by saying that the right to information has been a very, very hard fought right. It is not that any government has just sort of given it. It was fought at various levels over many years, and there has already been a huge pushback from the government on the right to information. And she highlighted 3 kinds of pushback: from the fact that the government is not collecting key details, whether that is then the census or whether that's information related to deaths during COVID, and therefore they get away by saying that we don't know, we cannot give you information because we ourselves don't have it. She said it's also been attacking the whole institutional framework of the right to information by way of not filling up the information commission's vacancies or by not appointing the right type of people. And she said the third concern has really been in terms of restrictive interpretations from the court. She said, despite all of these challenges,
The RTI has really strengthened people in the struggle to access key information related to basic rights and entitlements, and one would be hard-pressed today to think of any issue or any social movement or campaign which doesn't use RTI as one of the key tools in its kitty. She said that both right to information and right to privacy are fundamental rights of citizens, and we cannot allow the government to play one against the other. She said the government is asking us to choose one and sacrifice the other. And she said to her mind, this is the completely wrong framing of the issue. And essentially, the government is trying to empower itself in both ways. She said even when the RTI was being brought in, there were detailed discussions and conversations around protecting privacy, and therefore 81J was actually part of the bill and finally even the act. And in order to deny information under 81J, you have to prove at least three kinds of things. You have to first prove that that information has no relationship to public activity. You have to prove that it has no relationship to public interest, or you have to prove that it would cause unwarranted breach of privacy. So even when it comes to accessing personal information, there's a fair amount of leeway within the RTI Act that if it meets any of these criteria, then it has to be given out. She's saying that the data protection bill is completely doing away with all of this. It's completely just getting rid of all of this. And all that will remain is that information related to personal information will henceforth never be given again. And she said this is going to cause a huge pushback and a huge sort of restriction of our right to information. She said that we must try and see through, because very often when we engage with bills and laws and, you know, sort of these complex things, we lose sight of what really is happening. And she said that to her mind, if you cut through the chase, what you really understand is that when it comes to collecting information vicariously, the government says that people have no right to privacy. But when it comes to disclosing information, the government continuously cites privacy and says that therefore we cannot give you information, even basic information related to, say, things like assets and liabilities of public servants. Anjali said that the amendment will be a huge blow to the RTI Act. It will completely do away with the ability to access information related to personal information, since it does away with the proviso, it does away with the language of 81J. And she said that it's actually really going to have a huge impact on the ground, because we know that corruption is so pervasive that unless one has access to detailed granular information, very often you're not even able to access your basic rights and entitlements. She spoke of how unless you actually know that where has the ration gone, who has taken ration, has ration come in your name on your ration card, you're actually not able to very often access even your basic rights. She said one key issue that's been coming up even in the courts has really been the issue of what is the correct framing of oversight bodies, because one oversight body is also proposed through this data protection bill. And she said that even though there have been ongoing debates about, you know, how do you ensure that these institutions are not cage pirates, etc., the data protection board, which is sought to be set up through this act, does not even have any pretense of independence. I mean, everything is kept in the control of the central government. And she said that to her mind, this could really become a very weaponized institution in the hands of the central government, because they will have the ability to put penalties up to 500 crores. So she said that's going to be a huge disincentive on even the government, on the PIO, to disclose any information, lest they risk, I mean, perhaps intergenerational wealth in trying to pay back that 500 crore penalty. She said also in the process, and I think this is really important because I think this has to happen now in the next few days. She said the process of consultation is absolutely atrocious. It's only in English, it's only online. They've not even made the bill public in various languages. And she said, we really need to tell them that, look, this is impacting all of us all over the country. You have to have an extensive framework of consultation. You have to have it in multiple languages. You have to have multiple modes of giving in information. And I'm just going to add my one bit to what Anjali had said, that in fact, last time, I had registered on this MyGov application to give feedback to some other government proposal. And I think the MyGov application itself doesn't meet any of the basic criteria of data protection. Like every day I get some message from the MyGov saying, okay, today government inaugurated XYZ. And it's very difficult to give clause-wise, chapter-wise feedback. You know, most people are able to give some overall
viewpoint or something. So she said we really need to fight this, and this has to happen now in the next few days. And she said that you will be hearing from all of us, because there are plans to have 2 or 3 campaigns ongoing. One, a campaign which just says no amendments to RTI, and we all need to find ways to be part of it, send postcards, send letters, use our social media, try and also mobilize media around it. She said the other issue is that we will be sending in some comments and sharing at least some short points that people can also engage with and try to send off. And the third issue is going to be the process of consultation, on which all of us do need to come together and really take it up as a very big issue. And she ended by saying that, look, all of us need to come together to protect the RTI, because ultimately it's a cross-cutting issue. It cuts across all the issues, the movements, and therefore we all really need to come together and put our heads together on how we can deal with all of this. So thank you very much for that, Anjali. अब मैं बुलाना चाहूंगी विनीत को. विनीत हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से. और विनीत, मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप थोड़ी बात करें कि कितना जरूरी है जो ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो एक्चुअली क्यों जरूरी है, कैसे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. सोशल ऑडिट की भी थोड़ी अगर आप प्रक्रिया पे रिफ्लेक्ट करें, और थोड़ा ये बताएं कि क्यों हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में हो. क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि इस टाइप की जानकारी तो शायद नहीं होनी चाहिए, और ऐसी जानकारी तो केवल उसी व्यक्ति को होनी चाहिए जिस व्यक्ति के बारे में वो जानकारी है. तो थोड़ा अगर आप बताएं कि सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक डिसेमिनेशन क्यों जरूरी है ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन की भी, और आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं. ग्रैन्युलर मतलब कि एकदम जो डिटेल्ड जानकारी होती है, कि मतलब केवल ये नहीं बताना कि कितने लोगों को राशन मिला, लेकिन पूरी लिस्ट बताना कि भाई इनको राशन मिला इस पते पे. जी विनीत. शुक्रिया अमृता. बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और जिन लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा शायद अभी समझ में नहीं है हमें कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा. तो ये चर्चा बहुत जरूरी है कि हम भी समझें और ये बात और लोगों तक भी पहुंचे. सूचना का अधिकार सीधे सीधे जीने के अधिकार से जुड़ा है, और हम जहां काम करते हैं काफी लाखों लोग आज भी बहुत सी योजनाओं, ऐसी योजनाओं पे आश्रित हैं कि अगर वो योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं पाएंगे. आज भी काफी लोग, अगर उनका बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी, विधवा पेंशन नहीं मिलेगी, तो उनके पास राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा. सरकार धीरे धीरे पूरा डिजिटल इंडिया बन रहा है, सब कुछ हम कह रहे हैं कि डिजिटाइज हो रहा है, पेपर खत्म हो रहा है और डिजिटल फॉर्म में आ रहा है. लेकिन एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड भी है. लाखों करोड़ों लोग आज भी इन डिजिटल मीन्स तक नहीं पहुंच पा रहे, हालांकि उनकी सारी सूचनाएं एकत्रित हुई हैं, आधार सभी के बने, उनकी सूचनाएं जमा हुई, वो जिस भी योजना में लाभ लेंगे आप डिजिटली अप्लाई करो. लेकिन अगर मुझे पता करना है कि मेरी पेंशन आई या नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो अगर मैं खुद, खास तौर पे अगर हम उदाहरण ले, राजस्थान में करीब 90 लाख पेंशनर्स हैं, उसमें से कितने लोग खुद अपनी सूचनाएं देख पाएंगे, खास तौर पे जो बुढ़ापा पेंशन लोग ले रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड भी है. और उसके साथ साथ कुछ जगह पे सरकार भी डैशबोर्ड सरकार बनती जा रही है. अगर आप प्रधानमंत्री आवास के बारे में देखें, कोई जानकारी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में किस किस का नाम है, बस एक संख्या गिनवा दी जाती है. लेकिन एक नागरिक के लिए ये जरूरी है कि मुझे क्या मिल सकता है या मुझे क्या मिल रहा है. तो एक तो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि मुझे मैनेज करने के लिए क्या सूचना चाहिए. एक कॉन्सेप्ट है जनता इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि एक नागरिक के लिए क्या सूचना जरूरी है. तो एक नागरिक को ये ज्यादा वो जानना चाहेंगे कि मेरी पेंशन आई या नहीं, मुझे कितना राशन मिला. और इसी जरूरत को लेकर 2017 में सरकार के साथ एक बातचीत शुरू हुई, क्योंकि हमने देखा, एक यात्रा निकली थी राजस्थान में 2015 में. हमने देखा कि बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें पेंशन मिलती थी, पेंशन मिलनी बंद हो गई, राशन मिलना था, राशन मिलना बंद हो गया. सरकार ने धीरे धीरे डिजिटाइज किया, बायोमेट्रिक से राशन शुरू किया. लेकिन जब सरकार से हम मिले कि ये राशन किस किस को मिल रहा है, क्या क्यों आप अब तो आपका डिजिटाइज फॉर्म में आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी
शुद्धिकरण चल रहा है धीरे धीरे, अगर अभी नहीं डाल सकते, शुद्धिकरण कर रहे हैं, बवाल मच जाएगा अगर अभी डालेंगे तो वो सूचना लाने में भी करीबन 1.25 साल लगा। लेकिन जैसे ही वो सूचना आई, अब हमने कुछ जगह पे जाकर प्रोजेक्टर से उसको दिखाना शुरू किया कि आप अपना राशन कार्ड लाइए, देखिए कि आपके राशन कार्ड पे क्या लाभ आपको मिला है। तो लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि इतना तो हमें कभी राशन मिला ही नहीं है, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन के साथ गए और अपना राशन का हक लिया। इसी तरीके से पेंशन में लोगों को 2016 में राजस्थान में करीबन 1 लाख लोगों को 10 लाख लोगों की पेंशन रोक दी गई थी। उसमें से जब दोबारा सर्वे किया गया तो काफी लोग ये कह के पेंशन रोकी गई कि वो मर चुके हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन एक्चुअल में वो लोग जिंदा थे और उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी। तो ऐसी कुछ चीजें जब हुई तो हमने कहा कि इसका क्या किया जा सकता है, कम से कम जो ऐसी स्कीम्स हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन कैसे पब्लिक डोमेन में आए। और सूचना के अधिकार में तो पहले से सेक्शन 4 है जो कहता है कि सरकार सूचनाएं जो भी लेती है उसको ठीक से रखे, पब्लिक डोमेन में डाले। तो हमने एक संवाद शुरू किया सरकार के साथ, जिसको हम डिजिटल डायलॉग बोलते हैं, और उसी से एक आइडिया निकला कि क्यों ना हम एक ही जगह पे ये सब सूचनाएं, और जितना डिटेल में हो सकती हैं व्यक्तिगत स्तर तक। तो जन सूचना पोर्टल में हर तरीके की सूचनाएं हैं, व्यक्तिगत स्तर की भी हैं, संस्थागत स्तर की भी हैं, कि अगर मेरी राशन की दुकान में कितना स्टॉक है मैं देख सकता हूँ, मेरे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मैं देख सकता हूँ। और उसी से एक आइडिया और निकला कि अगर ये सूचनाएं इस तरीके से बाहर आ सकती हैं तो सोशल ऑडिट करने के लिए भी आपको कोई सोशल ऑडिट टीम की जरूरत नहीं है। आपके पास जन सूचना पोर्टल से ही एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट आ जाए। और हमारे एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे हमारे गांव में राशन की दुकान थी, हमने कहा कि क्यों ना सबके नाम राशन की दुकान के आप एक फ्लेक्स छपवाएं, एक पेंटिंग करवा दें दुकान पे कि इनको राशन मिलता है। जैसे ही वो पेंटिंग हुई, लोगों ने देखा, अरे इनका नाम है, ये तो सरकारी नौकरी में है, इनका नाम है, इनका तो गाड़ी है। तो धीरे धीरे वो नाम अपने आप हटे, उन लोगों को खुद महसूस हुआ और उन्होंने हटवाए। तो इस तरीके से सूचना में शक्ति है, वो हम जानते हैं। पर अब उल्टा हो रहा है कि जो डेटा है कमर्शियल यूज भी है उसका, और सरकार के पास भी काफी यूज है। वो एकत्रित तो करते हैं लेकिन देने में संकोच करते हैं, या खासतौर पे जो डेटा प्राइवेसी पूरा सेक्शन 4 तो कहता है कि आप जितना हो सके जनता को सूचना दें, लेकिन जैसे पहले भी आपने बताया कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो ये कह रहा है कि आप ये निजी सूचनाएं नहीं दे पाएंगे। वो क्लॉज ही आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देने का है वो हटा रहे हैं। तो ये लोग जब अपनी सूचनाएं खुद नहीं देख सकते तो कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए जिसके थ्रू वो देख पाए। और आज सिविल सोसाइटी है जो, जैसे राजस्थान में 12 करोड़ से ऊपर लोगों ने इस जन सूचना पोर्टल को एक्सेस किया है, 17 करोड़ से ऊपर इंफॉर्मेशन डाउनलोड उससे हुई है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उसका यूज हुआ है। और डेटा प्रोटेक्शन का अगर ये क्लॉज आता है तो सीधे सीधे जो भी ऐसी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में है सब सरकार कभी भी हटा सकती है इस क्लॉज का मायना देकर। I'll just translate. So this is very important discussion and everyone is affected by this, but there are very marginalized people who don't even have a clue how it's going to affect their life. Lot of they are dependent, there are lakhs of people who are dependent on government schemes. If government schemes are not there, they'll die out of hunger. There are many people who are dependent on pensions, rations for their even to live. And
everything is being digitalized. Most of the information is, they will say go and check digitally, but there's a big digital divide. There are a lot of people who don't even have access to internet. Even if they have access to internet, they don't know how to look up the information. So you need some medium through which they can check their own information, and civil society and social audit play a big role in that. There are two concepts. One is that of management information system. In terms of management, what information I need. In that, maybe numbers matter. But there's a concept of Janta information system, that as a citizen, what's most important critical information for me? And for me, what matters most is what benefit can I get or am I getting? That's most important information for me. I might be interested in what's happening around me, what's happening in my panchayat ward, but most critical is my own information. And some time back in Rajasthan, we realized there was a yatra in 2015 wherein we realized a lot of people who are getting pensions are no longer getting pensions. Government said we are saving money because we cut off 10 lakh fraudulent pensions. And when we actually surveyed it, we wanted that information in public domain. They didn't give it out, but somehow we got hold of that information and did some sample surveys, and we realized people who have been declared dead are actually alive and not getting pensions. And in papers, they are marked as dead. The ration, everything was done through biometrics. They had digitalized information. We asked government to put that information out in public domain. They said, no, we are just working on betterment of this information. If we put it out in public domain, there will be a lot of hue and cry. So we said, let it be, because then only then this information will be corrected in a better way, if everyone can see that information. In our own shop, we painted the information of list of beneficiaries, and there were some beneficiaries who were government employees, government pensioners. Automatically, they went and they just cut off their names from the ration list because it came out in the public domain. Social audit in similar way plays an important role because it helps in disseminating that information to people who don't have access to the information. And this data protection bill is actually doing more of a Sarkar protection, because they want to hide data. They want to collect data, but they don't want to give out data. There are many websites who just have dashboards, the numbers. For example, PM Awas, you cannot see the waiting list of PM Awas beneficiaries. So some of this information is very important for the beneficiary, for the people who are eligible for this information. But if we look at they are trying to remove section 8J of RTI, which is about the personal information. It actually kills the whole RTI. And Jan Suchna portal was constructed under section 4, which says government should collect all the information, digitize it, keep it in a way that is easily accessible, and give it out to the public, that is through different means. And that's how the idea of Jan Suchna portal came in, wherein you can see for all departments what are different schemes, and you can go up to the beneficiary level information. And you can see what, for example, if I take example of ration card, I can see whether my ration card is in NFSA or not, who are the members in my card, when did I pick up ration, how much ration did I pick up. All that information is out there in public domain, and that helped out in routing out corruption. When people, either they themselves saw that information or we helped them to look at that information, they realized the actual information is very different from what they are actually getting. So they went out to the ration dealers and asked for their entitlement. So it helped in routing out the corruption. But in the current form, if
this data protection bill comes in, there's a direct attack on right to information. There's direct attack on the entitlements of the people, because there are a lot of people who cannot actually themselves go and look at that information. So I'll wrap with that, and I'll request everyone to please send out feedback to the government to bring this bill in the current form. Right. Thank you so much for that, Vineet. So Shailesh is saying he has to leave, but Shailesh, if in 2-3 minutes you just address 1 or 2 issues where people are saying that what can we do as citizens, I think that will be most useful, and then we'll carry forward the discussion with Anjali and Vineet after that. तो शैलेश अगर आप 2 मिनट में, क्योंकि 3-4 सवाल आए हैं कि आगे अभी क्या करना है, अंजलि ने थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करा था, बट अगर आप भी अपने सुझाव उसके ऊपर रखें, एंड देन वी कैरी ऑन द डिस्कशन विद अंजलि एंड विनीत। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि हम इसके सामने विरोध बताएं। जनता को आवाज उठानी चाहिए, और ये मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि 3 साल पहले जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के सैलरीज वगैरह का बात था, उस टाइम ज्यादा आवाज उठी थी। इस टाइम कुछ दबी हुई आवाज है, कहीं हम लोग भी ढीले पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये अगर पारित हो गया तो सूचना का अधिकार का कानून को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। हमें कोशिश करती रहनी पड़ेगी उसको वापस करने को, बट इस मौके पे अगर हम मीडिया के सहारे और जनता के आवाज को उठा सके, भ्रष्टाचार को ये बढ़ाएगा सूचना का अधिकार को खत्म करके, गलत चीजों को और थोड़ा जोर मिलेगा। और मेरे हिसाब से हम सब बात वही कर रहे हैं। विनीत ने भी बात जो बताई, अपर ने भी बताई, अंजलि जी ने भी जो बताई, एक ही मुद्दा है हमारा, सूचना के अधिकार को अमेंड मत कीजिए, संशोधन मत कीजिए। ये बहुत अच्छा कानून है, हमें उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए तो ये जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरह से करें, वो छोड़ के सूचना का अधिकार का कानून है। और जैसे अंजलि जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ने भी बहुत वार किए हैं सूचना के अधिकार को, जो गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। तो अगर ये संशोधन आया तो मेरे हिसाब से सूचना के अधिकार का मतलब ही निकल जाएगा और ये सूचना न देने का अधिकार बन जाएगा। धन्यवाद। Right. Thank you very much for that, Shailesh. I think आपसे बेहतर समेशन, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आपने बहुत ही बढ़िया की। So I think first of all also विनीत ने जो points raise करे, I think वो बहुत ही जरूरी है, because actually very often और ये सबके साथ होता है that all of us begin to lose sight of कि देश का actually हालात क्या है। मतलब अगर आप मेथी का प्रेस नोट भी देखेंगे तो मेथी के प्रेस नोट में लिखा गया है कि 57% ऑफ द कंट्री हैज एक्सेस टू द इंटरनेट, और वो एक एज अ थिंग ऑफ प्राइड बोला गया है। मतलब मुझे तो देख के बहुत ही शौक लगा कि अगर 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे देश में, तो मतलब उसके आधे लोग तो इंटरनेट पे नहीं है, वो आप खुद ही बोल रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि केवल सब कुछ अब इसी प्रकार से चलेगा। एंड आई थिंक व्हाट आल्सो हैपेंस, कात्यायनी ने को सवाल भी डाला है इन द चैट बॉक्स कि विनीत आप बोल रहे हो कि स्टेटस ऑफ राशन कार्ड सबको पता होना चाहिए, बट व्हाई आल्सो थर्ड पार्टी? I think the issue is also that over a period of time the discourse has become very much around privacy, and therefore हम लोग भी कई बार फिर उस एक framework में सोचने ज्यादा लगते हैं कि भाई क्यों इतना ज्यादा डेटा पब्लिक डोमेन में हो, क्या जरूरत है भाई? अगर किसी को कहीं पे जमीला जी, सुनीता जी को कोई पेंशन मिल रही है तो वो अपना ऑनलाइन जाके देख लें, बाकी सबको क्यों पता होना चाहिए? But I think Vineet put it very well and he brought in all those stories from the ground कि वो कितना जरूरी है। Like आपको पता ही नहीं है, you will be shown as dead on the government records, you will have no way to access that. गवर्नमेंट ये अज्यूम करता है एट द वेरी मिनिमम कि सबके पास मोबाइल फोन होगा और सब लोग ओटीपी जनरेट कर पाएंगे। वो बिल्कुल एक गलत सोच है। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि दिस नॉट जस्ट अ डिजिटल डिवाइड, दिस आल्सो एज डिवाइड टू दिस थिंग। इवन पीपल हु माइट बी एजुकेटेड, लिटरेट इन द फॉर्मल सेंस,
might even have access to the internet, but to access this kind of detailed thing, it's a huge divide. And मीरा ने बिल्कुल ठीक बोला, जेंडर डिवाइड है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो खुद का जो सरकारी आंकड़ा है, कम से कम वो तो नहीं सरकार बोल सकती कि आप लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने हमें बदनाम करने के लिए आंकड़ा निकाला। वो खुद बोलती है that only 1 in 3 women have ever accessed the internet। और मैं फिर से बोलने वाली हूँ कि 1 in 3 महिलाओं ने, 3 में से केवल 1 महिला ने कभी भी इंटरनेट एक्सेस करा है। तो देखिए, कभी भी इंटरनेट एक्सेस करना तो मीनिंगफुल एक्सेस है ही नहीं। ये तो मैं आपको मतलब अगर हम यहीं पे बैठ के अभी एक करें कि भाई 40 लोग हैं, हम 40 लोग बोले कि चलिए इस सरकारी वेबसाइट से ये डेटा ढूंढ के लाइए, मुझे लगता है विनीत और 2-4 लोगों को अलावा most people are not even able to navigate the kind of thing that the government expects and wants and is using as the basis of saying कि सार्वजनिक जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, लोग अपनी जानकारी खुद एक्सेस कर सकते हैं। मेरे को लगा कि एक आधी चीज which might be worth also sort of reflecting on, and उसके बाद we'll just hear from Anjali and Vineet both on the way forward or any other thoughts that they have। एक चीज जो मुझे लगता है कि कोविड के बाद जो सबसे बड़ी निकल के आई, इवन एक्सेस डेथ्स, यदि ये संशोधन आ जाता है तो आप एक्सेस डेथ, जो आप डेथ रजिस्टर है, आप वो भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहाँ पे एक डिनायल है ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे कि सरकार की जवाबदेही तय होगी, तो एकमात्र रास्ता हमारे पास केवल आरटीआई बचता है। और यदि अब हम ये बोल देंगे कि एनीथिंग दैट रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं दिया जाएगा, इट्स गोइंग टू बी ह्यूजली प्रॉब्लमैटिक। और फिर जो पूरे गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का है, वेदर वो किसी राजस्थान में किसी एक जिले में एक गांव में एक महिला की पेंशन का मुद्दा हो, या देश भर में कितनी डेथ्स हुई कोविड के कारण, उस ऐसे बड़े मुद्दे भी हो, इन सब मुद्दों के ऊपर जवाबदेही को एक बहुत बड़ा, एक मुझे लगता है पुशबैक और एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। एक और जो चीज की इंक्रीजिंगली सरकार जानकारी तो खूब ले रही है ये बोलने के लिए कि भाई बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता हो, बहुत जरूरी है कि जवाबदेही हो, लेकिन यदि आप देखें कि वो डेटा अब बाहर कितना डाल रही है तो वो बहुत चौंकाने वाली चीज है। जैसे पिछले 1 साल में सरकार ने ई श्रम पोर्टल शुरू किया, जिसपे आज की डेट में 28 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं। ये सरकारी आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। उसपे उन्होंने क्या करा कि इनिशियली वो इनकम का डेटा बता रहे थे हमें कि भाई इन लोगों की इनकम का किस ब्रैकेट में आता है। जैसे ही उसके ऊपर 2-4 मीडिया रिपोर्ट्स आ गई कि भाई इसमें तो ये लिखा हुआ है कि 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग तो लोएस्ट इनकम ब्रैकेट में है, 0 to 10,000, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो सरकार ने वो डेटा हटा दिया। तो ये भी जो चीज है कि सरकार किस समय कौन सा डेटा दिखाती है, डैशबोर्ड से किस चीज को हटा देती है, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं होती उस डेटा के डिसेमिनेशन की, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये डैशबोर्ड वाली जो पूरी प्रक्रिया है कि केवल हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा देंगे, उसका तो मतलब कुछ निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि असली में ये कौन लोग हैं। जैसे दिल्ली में ही पता चला कि 2 लाख से ज्यादा जो श्रम रजिस्टर हुए थे वो सब फेक निकले, क्योंकि बोर्ड के लोगों ने खुद बैठ के फेक आधार नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करी थी। So I think these are going to be some of the big challenges on the way forward. Anjali, would you like to share some of your concluding thoughts also on the way forward? कुछ ideas भी लोगों ने chat box में डाले हैं। एग्नेस बोल रही है क्या हम अपने MPs को भी लिखें कि वो लोग भी अपोज करें इस बिल को। मीरा बोल रही हैं that can we have open letters going out by large number of people including information commissioners. There is Ishan who's saying that please tell us the way forward, because we also now need to sort of start, we've discussed what the issues are, but how do we now take these up. इस टाइप के जो कमेंट्स हैं, एक और कमेंट है इनकलाब नामक व्यक्ति का जो बता रहे हैं कि JNK में कितना बुरा हाल है एंड इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी सारी इंफॉर्मेशन और सब कुछ हटा दिया गया है। So Anjali, over to you to share your comments on any of these issues, and also anything else that you may want to add to what you said earlier. नहीं, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो हम सभी लोग जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते आए हैं और जो इस अधिकार की ताकत को समझते हैं,
वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट कि इस तरीके का अगर कानून आता है उससे हमें क्या धक्का पहुंचने वाला है। और उसके लिए जो आपने कुछ सवाल भी पढ़े अमृता, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे देश की रियलिटी जो है वो अगर हम सही से समझें, जिस तरीके की गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरीके की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, और ये केवल कह देने से कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे कोई भ्रष्टाचार रुकता नहीं है। केवल एक ही तरीका है इस देश में भ्रष्टाचार को रोकने का, वो है विकेंद्रित रूप से अगर हम लोगों को सशक्त करें, और सूचना का अधिकार वही काम करता है। और ये हम किसी विदेश में नहीं बैठे हैं जहां पे सिस्टम्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, शिकायत निवारण के बढ़िया सिस्टम है कि मैंने शिकायत डाल दी, मेरा राशन नहीं आ रहा और आ जाएगा। ऐसा नहीं है। लोग मिलकर स्ट्रगल करते हैं तब उन्हें उनके अधिकार मिलते हैं। और अगर लोगों को जुड़कर साथ में स्ट्रगल करना है, सोशल ऑडिट करने हैं, पीपल्स ऑडिट करने हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब लोगों के पास सूचना हो कि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है। और इसीलिए सूचना के अधिकार कानून में जो नारे लगे वो केवल नारे नहीं है, वो मूल है हमारे सूचना के अधिकार का, कि सरकार का पैसा है, हमें अधिकार है ये जानने का कि वो पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किसके पास जा रहा है। आप ये सोचिए कि आज हमारे देश में अगर ये लिस्टें नहीं लगती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, किसको पेंशन मिल रही है, तो लोग इकट्ठे होके अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। और इसका मतलब होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों के अधिकारों का हनन चलता रहेगा। हमने ये देखा है। आप राशन की बात कर लीजिए, आप पेंशन की बात कर लीजिए, ये कहना सरकार हमें कहने की कोशिश कर रही है आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आप अपना सूचना ले सकते हैं, तो आपको दूसरे की सूचना से क्या मतलब है। पर ये हमें समझने की जरूरत है कि ये सरकार की सोची समझी चाल है, क्योंकि सरकार ये पूरे सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से समझ गई है कि जब लोग इकट्ठे होकर अपनी सूचना देखकर, जो पूरा जो व्यवस्था है उसको समझकर, वो पूरी सूचना देखकर आवाज उठाते हैं इकट्ठे होके, तब सरकार को विवश होके जवाबदेह होना पड़ता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि कोई जमीला बेगम कहीं पर बैठकर वो अपनी सूचना ले लें कि मुझे पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मुझे राशन मिलना है कि नहीं मिलना है, और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो नहीं होता है। हमारी जो पूरी लड़ाई लड़ रही है वो ये है कि आप राशन कार्ड धारियों के नंबर पता ना केवल वेबसाइट पे डालिए, आप तो सरकारी दफ्तर में, खाद्य के दफ्तर में दीवारों पर चिपकाइए वो सूचना, जिससे कि लोग आके देख सकें कि उनका राशन कार्ड है कि नहीं, किसी और का राशन कार्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने किसी ऐसे लोगों का राशन कार्ड बना दिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये सारी चीजों के अंदर लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसमें किसी की निजता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुप्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ये सूचना लोगों तक पहुंचती है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसके बिना जो हमारी सारी जवाबदेही के स्ट्रगल्स हैं, स्पेशली जो हमारे बेसिक राइट्स के लिए जो स्ट्रगल्स हैं, वो बेकार हैं। और इसलिए ये जो बहुत डेंजरस तरीके का ये फॉर्मुलेशन आया है इस कानून में, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। और मैं बिल्कुल एग्नेस से सहमत हूं कि जिस भी तरीके से हम आवाज उठा सकें, अपने एमपीज को लिखकर हम आवाज उठाए, हम दिल्ली में इकट्ठे होके जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा उसमें अगर डिस्कशन की बात होती है उस समय पे भी आवाज उठाएं, हम चिट्ठियां लिख के, हम रिप्रेजेंटेशंस लिख के आवाज उठाएं, और हाँ, हम जो भी
तंत्र है जो इसमें हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो चाहे इंफॉर्मेशन कमीशंस हो, चाहे एक्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो, और चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हो, सभी को मैं तो कहती हूँ कि जो आज सत्ताधारी पार्टी है उसमें भी अगर कोई खड़े होके समझ के ये बात उठाना चाहे उसको भी कहे कि आप उठाइए। तो सारी जगह पे हमें लिखना होगा, क्योंकि जितनी आवाज इस बारे में उठ सके उतना ही ये मुहिम स्ट्रांग होगा। और बहुत जरूरी है कि ये आवाज हम उठाएं, क्योंकि इसमें दो तरीके के लोग हैं जो कि बेनिफिट कर सकते हैं, और वो दोनों बहुत ही पावरफुल इंटरेस्ट्स हैं। एक तो है बिग कॉर्पोरेट और दूसरा है सरकार, और ये दोनों ही हम समझें कि हम अत्यंत ही ताकतवर दो फ्रेमवर्क्स के खिलाफ खड़े हैं, और इसलिए हम जितनी आवाज अपनी बुलंद कर सकें हमें करने की जरूरत है। मैं मीरा की बात से भी सहमत हूँ, एग्नेस की बात से भी सहमत हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके का बिल है ये कोई आसान तरीके में लिखा नहीं गया है, और ना ही इसको समझना सभी लोगों के लिए आसान है, जैसा विनीत ने कहा। तो इसलिए एकदम से ऐसा नहीं होता कि जन सैलाब खड़ा हो जाएगा। हमें उसके ऊपर काम करना होगा, लोगों तक पर्चे पहुंचाने होंगे कि इसमें ये क्या कह रहे हैं, सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, और कैंपेन बिल्ड करना होगा। और उसमें सारे मूवमेंट्स, कैंपेन्स, ग्रुप्स को इकट्ठे आकर ही ये काम करना होगा, इस कानून को, ड्राफ्ट कानून को रोकने के लिए और सूचना के अधिकार को बचाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने काफी सारे पॉइंट्स दिए ऑन हाउ वी कैन एक्चुअली अपोज दिस रिग्रेसिव बिल, एंड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ how we need to struggle to protect the right to information act also. क्या कोई साथी हैं जो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहेंगे? अदरवाइज आई विल टेक क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम विनीत एंड देन वी विल रैप अप दिस सेशन ऑफ ग्राउंडेड वॉइसेस। अगर कोई साथी है जो अपना हाथ रेज करना चाहे and you want to say something, or you want to say something in the chat box. Inkalab is saying this may be introduced in the ongoing winter session. That seems a little tough, but आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, वो मनी बिल ले आए, ऑर्डिनेंस ले आए, but I agree. I mean, we should be prepared for anything realistically. Okay, so what I'll do is that I don't think anyone wants to unmute. I think it's been quite a rich session also on the way forward. Vineet, any closing thoughts from you in about a minute or two? मुझे लगता है कि सूचना का अधिकार भी ऐसे ही लोगों ने बनवाया जो बिल्कुल अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें इसको एक ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा कि नरेगा मजदूरों को कहना पड़ेगा कि आपकी सूचना कोई और नहीं देख पाएगा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा, जो कि बहुत कम लोग उसमें सक्षम है। राशन की दुकान पे कहना पड़ेगा कि आपको कितना राशन मिला आप खुद ही देख पाओगे, कोई और आपके लिए नहीं देख पाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस भाषा में जिसको समझाया जा सके वो भी कहीं ना कहीं करने की जरूरत है, जिससे कि थोड़ा हम कुछ सिग्नेचर कैंपेन या एक बड़े स्तर पे भी ज्यादा लोगों को इस चीज तक को पहुंचा पाए। पहले तो यही है कि इसको खुद को समझना भी एक मुश्किल चीज है, जिस तरीके का इसमें भाषा प्रयोग होती है, जो टर्म्स हैं इसमें काफी टेक्निकल उस तरीके से है, बट फिर भी हम उसको थोड़ा आसान तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच विनीत। बहुत जरूरी बातें कि इसको हम कैसे सरल बनाए, लोगों तक पहुंचाए, एंड आई थिंक दैट द वे फॉरवर्ड इज क्वाइट क्लियर। इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क। आसान नहीं होता कभी भी कोई नया पूरा विधेयक जब प्रपोज होता है और उसके पीछे सरकार अपनी जब पूरी एनर्जी और अपना पूरा पीआर एजेंसी एक तरीके से अनलीश करती है उसके ऊपर, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आई थिंक I can say this with some level of confidence that many of us are available. यदि आप में से कुछ लोग चाहें कि कैंपेन्स के साथ या ग्रुप्स के साथ छोटी मीटिंग्स हो, स्पेसिफिकली डिस्कशन हो कि डेटा प्रोटेक्शन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है,
तो हम सब उपलब्ध हैं उसके लिए, कम से कम जितने हम सब लोग आज बैठे हुए हैं, आई थिंक अंजलि, मैं, शैलेश, होपफुली विनीत एंड अदर्स ऑल्सो। एंड आई थिंक हमें इसको स्टेट लेवल पे मीटिंग करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मीटिंग करके, सिग्नेचर कैंपेन, लेटर टू एमपीज, मे बी हम ऐसी टाइप की चर्चा भी और करें। और ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग एक है कि हो सकता है कि आज हमें 100% ना भी क्लैरिटी हो पूरे इस बिल की, लेकिन जितना अभी तक समझ में आया वो तो हम समझ के उसको साझा करें और आपस में डिस्कस करके और उसके जो पॉइंट्स है वो निकल के आएंगे। सो आई थिंक विद दोज थॉट्स आई एम गोइंग टू रैप अप एंड आई एम गोइंग टू से कि केवल क्रिकेट में शतक नहीं लगता, अगले हफ्ते ग्राउंडेड वॉइसेस का भी शतक होने वाला है। तो आप सब लोग जरूर उसके लिए जुड़े। आई थिंक इट्स बीन इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ 100 वीक्स। इट्स नॉट इजी एक्चुअली वंस यू स्टार्ट समथिंग कि उसको आप 100 हफ्तों तक चलाते रहें। सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू रियली द बैकबोन ऑफ दिस होल प्रोग्राम, मीरा, अरुंधति एंड हमारे जितने सारे वॉलंटियर्स हैं जो क्वाइटली पीछे से सारा पोस्टर बनाना और ये जूम चलाने का भी सारा काम करते हैं। सो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। And I think today's thing has really given a lot of food for thought. I agree with मीरा कि ये आज का जो लिंक है उसको ज्यादा से ज्यादा अगर हम सर्कुलेट कर पाए, बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे हमने कोशिश करी इसको अनपैक करने की एक तरीके से लोगों की ओर से कि इसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव होगा। And hopefully we'll all be able to come together and launch a very successful campaign and stop the proposed amendments to the RTI and to our other rights. And with those words, I'm going to wrap up this Grounded Voices with a very, very big thanks to Vineet, Anjali, Apar, and Shailesh. And that's all from our end. Thank you all for joining. Bye. Thank you. Zindabad. Zindabad. Bye.